Hello everyone, welcome to Dakshana e-classroom program, and this is an paper analysis video for paper 2 for year 2017. तो सबसे पहले why this video is very important for every student. Doesn't matter whether you are starting the preparation for IIT or you are in the final stage of IIT and just about to write the exam by the end of this year. And whenever the date is announced. देखो जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली कि इस वीडियो में आपको चीज़ें कुछ क्वेश्चंस होती हैं स्टूडेंट्स के पेपर कैसा रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना रहता है, क्वेश्चन आईआईटी में कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट को वेटेज कितना रहता है, एक ओवरव्यू बेसिकली ऑन एन एवरेज ओवरव्यू क्या रहती हैं चीज़ें, 11th क्लास से कितना रहती हैं क्वेश्चन, 12th क्लास से क्वेश्चन कितने रहते हैं, और तो ये पूरा आइडिया लगता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आईआईटी या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, क्या पूछता है, क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है। दीज थिंग्स यू कैन गेट overview and insight of those questions basically in this video, so that's why it is very important and helpful for the students, IIT aspirants basically who are in beginning phase, जो अभी just exam लिखने वाले हैं उनके लिए इस तरह से कि they will have the actual feel of proper IIT paper actually। कि physics के लिए वैसे the part I am basically making the analysis video, तो यहाँ पे आपको चीज़ें कि कितना important कौन सा part है, कौन सा topic है, अगर आप थोड़ा सा बाउंड्री लेवल पे हैं तो आपको कहाँ फोकस करना चाहिए आपको और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो पेपर है उसका हर एक में डजेंट मैटर कि वेदर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है या आसान है, मॉडरेट है। इन एवरी पेपर देयर आर क्वेश्चन, सम क्वेश्चन फ्रॉम very easy, which are very easy, some moderate and some difficult. Only the difference comes is that the number of questions which are easy in one paper may be definitely different from number of questions which are easy in the next paper or next year basically। तो वो वेटेज बदल जाता है, बाकी हमेशा रहते हैं। बट अगर मैं कहूँ दूसरी बात आपको कि इजी प्लस मॉडरेट को आप हमेशा मिला करके देखेंगे ना, ऑलवेज यू विल हैव अराउंड 50% वेटेज और मोर देन दैट। तो ये जो पार्ट है वो ऐसा होता है कि इजी और प्लस मॉडरेट आप पक्का सॉल्व कर सकते हैं, आपने थोड़ी सी ठीक ठाक तैयारी कर रखी है आईआईटी एडवांस की। तब ब्रेन स्टॉर्मिंग चीज़ें होती हैं डिफ़िकल्ट पार्ट में, टफ पार्ट में, तो वहाँ के लिए आपको ये समझ लो कि डबल और ट्रिपल मेहनत करनी हो पड़ती है टू सॉल्व दोज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन द एग्ज़ाम एक्चुअली। So cracking is one thing and securing good rank it's another thing actually, and many people, many students even not able to crack the pass the cutoff or qualifying marks. That's because one thing either they have not studied at all, another thing is they have studied and they have done good practice and their studies is not right actually। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। Okay, so let me first tell you the pattern of the paper that was asked in 2017 paper 2। So there were basically question paper pattern, there were total 18 questions, ठीक है, in the paper, and 7 questions were only single correct MCQs, multiple choice questions, and the marking here was +3 for correct, 0 if not answered, and -1 if it is wrong answered। ठीक है ना। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन was one or more than one option, so next 7 questions, 1 or more than one correct answer type questions, ठीक है ना। एंड हियर मार्किंग इज लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज आईआईटी क्या है कि either pattern, sometime questions, sometime marking scheme, it always keep on changing. It's very must for every student to read the instructions carefully when you are writing the exam actually, क्योंकि वो चीज़ आपका अगर आपने
ध्यान में है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी हालत ख़राब कर देता है बेसिकली उस सिचुएशन में. सो हियर द मार्किंग स्कीम इज +4 if you have marked all the correct answers, correct options. It's +1 for each partially correct ऑप्शन. बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो ये है +1 मिलेगा तभी जब ओनली करेक्ट ऑप्शन हैज़ बीन मार्क्ड, नो रॉन्ग आंसर ऑप्शन. जैसे अगर किसी का आंसर होता है ABC और आपने ABC मार्क किए तीनों, देन यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स. And if you have marked only A and B, then you will get +1 and +1. That means you will get 2 marks. अगर आपने B, C, D मार्क कर दिया, means it's a wrong. एक गलत है तो यहाँ पे +1 उसके लिए -2 नहीं, it will be completely -2 because you have marked wrong answer actually. So this is the system basically. So for negative wrong answer like marking, it will be -2. Wrong or all other cases. So that was, and next 4 question was comprehension based. So 2 problem based on each comprehension, 2 comprehension. So that was the pattern, and here the marking scheme for this is +3 for right answer and 0 all other cases. So means no negative marking in this pattern. So this was the pattern of paper. Next things come here is that what was the weightage for 11th class marks wise and question wise? How many questions was asked from 11th and 12th? So number of questions from 11th class. तो यहाँ पर है पेपर 2 में there were 8 questions from 11th class and 10 questions from 12th class. तो इसमें देख सकते हैं कि 12th class का weightage ही ज़्यादा ही है, and that's about basically 57% and 43% for 11th class. मार्क्स को अगर देखा जाए कितने मार्क्स का क्वेश्चन 11 से था मार्क्स, then it's basically 26 marks and 35 marks. So this is the total marks wise weightage. Another things come is about difficulty level. Is it difficulty of paper? देखो इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो आईआईटी का पेपर है उसमें हमेशा कैसा भी पेपर हो, किसी भी ईयर का हो, कितना भी लेवल कैसे भी हो, बट ऑलवेज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी, मीन्स इजी, few questions moderate and few questions will be difficult. Only the variation comes is the number or weightage. Sometimes difficult questions are more, sometimes easy questions are more, and sometimes moderate questions. So that ultimately change the tone of the paper. If difficult questions are more, then we will say overall it's like a difficult paper basically. But for cracking or for the boundary students, it's always like, because there are easy questions actually. You just need to identify. It's like not easy to identify those things, but if you do the practice properly, then it's not even very difficult also. Okay, so let me tell you about that like difficulty wise. So overall the paper 2 for physics was sort of like moderately or difficult compared to paper 1. Paper 1 was very easy actually. So paper 2 was difficult or it's a moderate. So let me first tell you number of questions and marks for easy, moderate and tough or difficult. तो इजी में क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स में, इट्स लाइक 16 क्वेश्चंस टोटल. दिस इज अबाउट कंप्लीट पेपर, एंड 15 क्वेश्चन मॉडरेट एंड ओनली 5 क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट. तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि पूरे पेपर की बात करें, पूरे का मतलब पूरा आईआईटी का मतलब पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके फॉर दैट. एंड द मार्क्स वाज फॉर इजी पार्ट इट वाज 52 मार्क्स, 53 marks for moderate part and only 17 marks, total 122 marks. तो यहाँ देख सकते हैं कि
Most of the part is like easy and moderate, and very few problems were basically difficult. So overall paper was like you can say easy, but if I look at just paper 2, then it was moderate to tough little bit, not easy, but paper 1 was completely easy. So that is about basically your difficulty level and all that. And another things come is that what is the like unit wise and topic wise weightage of number of questions and marks asked in the paper actually. So let me tell you that too. For that need to erase the board. Okay, so if we look at the weightage for unit and topic wise, then for these complete paper 1 and paper 2, the weightage for electrodynamics part was like total 12 question was asked, and constituting around 42 marks, and that's roughly 34% of total physics part basically. तो यहाँ देख सकते हैं लाइक इट्स क्वाइट हाई एक्चुअली, और देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक पार्ट है उसका नॉर्मल वेटेज भी लाइक ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में 25 to 30% और 30 समटाइम 35% आल्सो देयर एक्चुअली, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक पार्ट है इट्स लाइक क्वाइट लार्ज पार्ट, मतलब जो कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है अगर समझ में आती हैं चीज़ें. एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आप ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो ये समझ लो कि आपका कट ऑफ तो पक्का मतलब है कि आप क्रैक तो हमेशा कर ही सकते हैं, बिकॉज जनरल का भी कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज देखा है तो लगभग इतने के बराबर ही रहता है. रेयरली इट गोज बियॉन्ड 40, अदरवाइज अराउंड 30% बेसिकली 35%. तो यू कैन क्रैक एक्चुअली इन दैट पार्ट आल्सो. और हालांकि हाँ ये और प्लस एक और आपको हाँ अगर ऑप्टिक्स कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू आर इन पोजिशन टू क्रैक द पेपर बेसिकली. ओनली 2 पार्ट. चीज़ यहाँ पे ये है, पॉइंट इज़ दैट कि IIT एडवांस के लिए आपको अगर थोड़ा सब कुछ आता है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. IIT एडवांस के लिए चीज़ें आपको ढंग से आनी चाहिए, मतलब अच्छे से आनी चाहिए चीज़ें. तो भले ही आपको आधा पार्ट आता है, भले ही आपको आधी सब्जेक्ट आती है, भले ही आपको 12th क्लास का ओनली सिलेबस आता है, लेकिन वो जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, तब आप IIT एडवांस के पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में होते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली दैट मेक IIT एडवांस डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम और JEE मेंस बेसिकली. ठीक है ना. सो दैट इज़ द पॉइंट एक्चुअली. तो यहाँ पे बेसिकली आते हैं तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMI एंड AC. तो इस साल अगर देखा है तो इसमें भी अगर फर्दर चैप्टर्स में अल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटेंस दोनों से 2-2 चैप्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से लाइक 6 क्वेश्चन वर देयर कंप्राइजिंग 20%. तो जो कि नॉर्मली लाइक कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से या कभी EMI से किसी एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. बट ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली 1 क्वेश्चन वाज देयर. एंड नेक्स्ट थिंग इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली. ये यहाँ पे हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एंड कैलोरीमेट्री. तो ये सब पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट भी नहीं है. और इसका वेटेज अगर आप देखोगे मतलब लाइक बहुत सारे पेपर्स का, तो इसका वेटेज लगभग इतना ही 10 to 15% और समटाइम 18% रहता है. जितना इसमें लाइक ये समझो कि मेहनत आप करोगे उतना रिवार्ड आपको मिल जाता है बेसिकली. 5 क्वेश्चन इट्स गुड एनफ फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. जिसमें देखा है तो KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन थे और हीट ट्रांसफर से 1 क्वेश्चन. सो इट हैज़ लाइक 14% वेटेज. Mechanics again, just like electrodynamics, is around half part of the 12th syllabus complete. Similarly, mechanics is also around half part of 11th syllabus completely. तो उसमें भी देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 36 मार्क्स, और weightage is 30% basically. The point is that mechanics, it's like if you have strong, I mean like very, you have done a lot of practice, you will find it easy actually. Otherwise most of the time this part is like a little bit difficult or not exactly that. Then I will say कि difficult question इसमें अच्छे खासे लेवल के बन जाते हैं. आप कितनी भी RVD तो जो एक चैप्टर है वो मतलब लाइक बहुत रेयरली होता है कि उसके क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में बनते हैं, अदरवाइज उसके क्वेश्चंस छोड़ने के लिए ही होते हैं. मतलब लाइक ये समझ लो कि RVD का क्वेश्चन आया तो मतलब लाइक हालत ख़राब करने वाला है. नॉट ऑलवेज, समटाइम आसान क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट आई एम टेलिंग यू द जनरल ट्रेंड एक्चुअली. तो यहाँ पे इस बार भी अगर देखोगे तो RVD से
पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं 17 नंबर के, 14% वेटेज वाज देयर आउट ऑफ दिस एंड रिमेनिंग चैप्टर्स हैव सेंटर ऑफ मास, एरर एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, मैथमेटिकल टूल्स, वन सरफेस टेंशन। एक और पॉइंट जो मैं मैकेनिक्स के बारे में बोलना चाहूँगा दैट इज बेसिकली एरर एंड मेजरमेंट। एरर और मेजरमेंट से हमेशा ये समझ लो कि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पक्का, और ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। तो आप लोग अगर लाइक डजंट मैटर वेदर यू आर इन इनिशियल और फाइनल स्टेज, आई वुड से ऑलवेज प्रिपेयर एरर एंड एनालिसिस प्रॉपर्ली एक्चुअली, बिकॉज दैट विल सिक्योर लाइक कंफर्म योर वन क्वेश्चन एक्चुअली। एंड थोड़ा सा मेहनत करके आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं पक्का पक्का, तो वो कम नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो दैट इज अबाउट मैकेनिक्स बेसिकली। मॉडर्न फिजिक्स, this is disappointing little bit this time because ये एक पार्ट ऐसा रहता है जिसमें हमेशा आईआईटी अच्छे क्वेश्चन पूछता है and the weightage for this part is around 20% most of the time on an average actually, but this time it was only 7.4%, that's means like only 3 questions was asked from this part। इसमें है तुम्हारे पास बोर मॉडल, atomic structure basically same बोर मॉडल, photoelectric fact and न्यूक्लियस एक्सरेज, तो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे इस बार मॉडर्न फिजिक्स से दो क्वेश्चन थे और न्यूक्लियर फिजिक्स से एक क्वेश्चन, टोटल 7.4% वेटेज समथिंग। ऑप्टिक्स में एक आपका आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या अनदर इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। वेव ऑप्टिक्स भी जस्ट लाइक एरर एनालिसिस की तरह एक चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और उससे पक्का पक्का एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है। इस बार भी एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से था। कभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कम, तो इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से सो इट हैज़ लाइक थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मेहनत है और कम इस बार पूछा गया, बट ऑन एन एवरेज इट हैज़ लाइक गुड। जितना मेहनत करवाता है चैप्टर उतना वेटेज यहाँ पे रिवार्ड्स आपको मिलता है बेसिकली। SHM एंड वेव, तो यहाँ पे SHM स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव, इस बार SHM से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन स्ट्रिंग वेव से, एक क्वेश्चन साउंड वेव से, एंड दैट वाज 7 मार्क्स एंड 6% समथिंग। सो दिस वाज द वेटेज। तो आप इनिशियल और फाइनल स्टेज में हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, और ये पक्का होना चाहिए स्ट्रेटेजी कि जो स्ट्रांग है उसको मतलब लाइक IIT एडवांस का टारगेट करना है तो मतलब सॉलिड बना लो। जो थोड़ा कम स्ट्रांग है उसको ज़्यादा स्ट्रांग बना लो। जो कुछ पार्ट नहीं आता है और आपके पास टाइम नहीं है उसको छोड़ सकते हैं, बट जो आता है वो ढंग से आना चाहिए, तो आप IIT क्रैक करने की पोजीशन में होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर। लेट मी गो थ्रू द पेपर आल्सो, देन यू विल हैव सम आइडिया कि कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन छोड़ने के हैं, कौन से, देखो मेरा लाइक थोड़ा सा आपको आइडिया भी लगेगा कि हाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बस थोड़ा सा आपको माइंड का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखना होता है, माइंड को रिलैक्स और कूल रखना होता है एग्जाम के दौरान, then you will be in position to answer the things better and secure or score good marks actually. So let me go through the paper first. Let me erase it. Okay, so let's go through the paper. So here we have question number 1. तो यहाँ पे पूछा गया है consider an expanding sphere of instantaneous radius r and whose total mass remains constant. और sphere है वो क्या हो रहा है, expand कर रहा है। Then expansion such that the density rho remains uniform throughout the volume and rate of fractional change in density 1 by rho d rho by dt is also constant. तो velocity of at any point on the surface of the expanding sphere is, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मास बराबर लिख देते हैं रो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस इज चेंजिंग एंड दिस इज चेंजिंग, एंड डी वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस विल बी इक्वल टू dr/dt। ये निकालने का था, सिंपल सा है, सिंप्लीफाइंग इट यू विल बी सॉल्विंग इट, और आसानी से निकाल सकते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 ईजी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखा है कंसिडर ए रेगुलर पॉलीगन with the number of sides 3, 4 and so on, 3, 4, 5 so on, so on. Center of mass of all the polygon is at height h from the ground. They are rolls on a horizontal surface without leading about the leading vertex without slipping and sliding as depicted. The maximum increase in height of the locus of the center of mass of each polygon is delta, then delta depends. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लाइक बेसिकली बहुत आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक एन साइडेड पॉलीगन ले लेते हैं, तो दिस वी नो एक्चुअली दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई बाई एन। सो दिस विल बी एंगल विल बी वन पार्ट विल बी पाई बाई एन, और ये हाइट तुम्हें दे रखी है, दिस इज योर हाइट एच। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब ये इसके अबाउट टर्न करेगा देन दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी दिस बेसिकली एक्स। तो एक्स को अपन लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू एच बाई इंटू कॉस ऑफ
π/n। देन चेंज इन हाइट, अभी h है, बाद में ये हो जाएगी x, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू h/cos ऑफ π/n minus h, and that comes out to be h, taking it out, 1/cos of π/n minus 1, and that matches with option P। बेसिकली मेरे को सॉल्व नहीं करना था, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत आसान सा है ये भी, लाइक easy to, you can write it in moderate if you're understanding। next question number 3, यहाँ पे photoelectric material having work function phi naught is illuminated with a light of wavelength lambda less than hc by phi naught। The fastest photoelectron has a de Broglie wavelength of lambda d। The change in wavelength of the incident light delta lambda result in the change in delta lambda d in lambda d, then the ratio। तो ये भी एक बेसिक एप्लीकेशन है। यहाँ पे hc by lambda is the energy of incident photon minus phi not work function, this will be equal to the maximum kinetic energy, that is p square by 2 into mass of electron। p is equal to h by lambda, so this can be written as h square by 2 m into lambda de Broglie square। अब यहाँ पे करना क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दो लैम्डा को, बाकी सब कांस्टेंट, इसमें भी लैम्डा को डिफरेंशिएट कर दो, एंड देन रेशियो ऑफ लैम्डा d डिवाइड बाई लैम्डा d lambda will be your answer, and that can be easily calculated। So this is also an easy problem, not at all difficult actually। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो आप देख सकते हैं कि मतलब आईआईटी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हिला के रख देते हैं बेसिकली, तो उनका आपको ध्यान रखना होता है कि उनमें आपको मूड नहीं ख़राब करना है, अपना माइंड को रिलैक्स रखना है और उसको छोड़ते हुए सिंपली आगे बढ़ना रहता है बेसिकली। यहाँ पे अनदर सिमेट्रिक स्टार कंटेनिंग अ वायर लूप इज कैरिंग स्टेडी करंट स्टेट करंट आई एस वन इन द फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्टार इज 4a, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे एक आपको स्टार भी रखा है ऐसे ऐसे दिस, ठीक है ना, एंड दिस, तो लाइक and up to here this, तो ये this is a star basically। तो यहाँ पे basically there are 12 total ages, 1 2 3 4, just consider like this part, and यहाँ पे क्या करो, एक इतने पार्ट की वजह से एक कोई, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, जस्ट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पार्ट, दैट टू कैंसिल θ1, और इसके लिए θ2 हो जाता है टोटल, θ1 से θ2 फाइनाइट वायर की वजह से, एंड जस्ट मल्टीप्लाई दैट 12 मल्टीप्लाइड बाई b1, दैट विल बी योर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो दिस इज आल्सो मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे आपको देखा है 3 वेक्टर्स p q r आर शोन इन द फिगर एट s be any point on the vector r, and the distance between the p q and r is p and s is b times of r mod r। the general expression about relation among p q r, तो ये तो लाइक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है रिलेशन, बेसिकली p वेक्टर है, q वेक्टर है, r वेक्टर है, एंड दिस इज योर s वेक्टर बेसिकली। तो ये जो वेक्टर है दिस इज गिवन एज b टाइम्स ऑफ मॉड ऑप्शन s। तो ये p वेक्टर, दिस इज q वेक्टर, एंड दिस इज r वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको s की टर्म्स में लिखना है, s बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल आप लिख सकते हैं बेसिकली s, देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली अगर बताएं वैसे मतलब एक बहुत बेसिक सा है, वी कैन राइट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्यू बार, तो आपके पास क्यू बार आ जाता है और पी बार का टर्म्स में रिलेशन आ जाता है। बाकी आपको नेक्स्ट पूछा गया है एस बार इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, तो एस बार को आप लिख सकते हैं पी बार प्लस एस बार इज इक्वल टू आर बार, एंड एस बार को लाइक दिस, एस बार इज इक्वल टू आर बार माइनस पी बार, और पी बार को आप बाकी की टर्म्स में दिस एंड दिस की टर्म्स में लिख के तो रीअरेंज करके बहुत आसानी से। सो दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रॉकेट इज लॉन्च्ड नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सन, एंड तो यहाँ पर है कि एक ये सन मतलब है ऑर्बिट, दिस इज द पॉइंट अर्थ। तो यहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, और अगर हम सिंपली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो उसकी एस के वेलोसिटी √2g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ आ जाता है। लेकिन अभी अगर हम चाहते हैं कि रॉकेट को कुछ v वेलोसिटी से थ्रो किया जाए, दैट इज कैपेबल ऑफ गोइंग आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक सन बोथ, तो उसके लिए मिनिमम एस के वेलोसिटी, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कर दो
जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ एंड सन आल्सो हो, तो उनको बराबर जीरो कर दो, तो यहाँ पे माइनस ऑफ जी एम एम अर्थ इंटू एम डिवाइड बाई आर ई एंड माइनस ऑफ जी मास ऑफ सन इंटू एम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सन, दिस इक्वल टू, या फिर आप लिख दो प्लस हाफ एम इंटू वी एस्केप स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको रीअरेंज करके बाकी मास ऑफ सन आपको अर्थ की टर्म्स में, रेडियस ऑफ सन भी अर्थ की टर्म्स में, रेडियस ऑफ सन बेसिकली आई मीन दिस डिस्टेंस, रीअरेंज करके बहुत सिंपल सी लाइक सो दिस इज आल्सो आई विल नॉट से एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a person measure the depth of the well by measuring the time interval between the tire, ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्सन डेप्थ ऑफ वेल मेजर कर रहा है, उसमें एक स्टोन ड्रॉप करता है तो उसको जाने का टाइम लगता है, फिर साउंड क्रिएट करता है उसको आने का टाइम लगता है, तो टोटल टाइम इज गिवन बाई रूट ओवर 2h बाई जी प्लस एल बाई वी, दिस इज द एल बाई आई मीन लाइक जो स्पीड। Now here this error in the measurement of delta t is given, तो यहाँ पे आपको basically मेजर डेप्थ, तो पहले तो इसको रीअरेंज करके h की वैल्यू निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो इन टर्म्स एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो वो आपको इजीली लाइक रिलेशन मिल जाता है, दैट्स ए मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट थिंग इज दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 1 like one single digit, a single one option correct MCQs basically, and next this is section 2 which is containing 7 question and here one or more than one option are correct। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन, तो यहाँ पे एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करती है, इसकी डिस्टेंस देखी है, और एक पार्टिकल है वो यहाँ पे क्यू चार्ज का वी वेलोसिटी से कुछ एंटर कर रहा है, अब इसका पाथ कितना होगा, कहाँ से होगा, और वो सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। दिस इज बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मतलब जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस वो डिस्टेंस वगैरह कब कौन सा कहाँ कितना एंगल और किधर से निकलता है, दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। आई विल से इफ यू रिमेंबरिंग द फॉर्मूला इट्स वेरी इजी एंड easy to moderate question। Next question number 9, so the instantaneous voltage at 3 terminals marked x y z are given, then ideal voltmeter is connected configured to read RMS value of the potential difference between its terminal, it is connected across x and y, तो x and y के लिए क्या रीड करेगा, vx माइनस vy रीड करेगा, इसका vx दे रखा है vy दे रखा है, नेट इनका एम्पलीट्यूड निकाल दो, उसका एम्पलीट्यूड by root 2 will be your RMS value, so just calculate its RMS value that can be calculated by vector addition। ऐसे ही आप y और z के लिए फिर बाकी आप आंसर कर सकते हैं easily, so that's also just little bit calculation, moderate to easy question actually। next question number 10 में आपको दिया गया है, हाँ, a point charge q is plus q is placed just outside the imaginary hemisphere surface of radius r as shown in the figure, which are the following statement। so ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे मैं इसको इधर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को, तो ये है हेमिस्फीयर बेसिकली, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, तो फर्स्ट थिंग इज कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द फ्लक्स थ्रू दिस, और यहाँ पे सॉलिड एंगल निकाल करके उसका टोटल फ्लक्स और सॉलिड एंगल के द्वारा तो अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं, और बाकी यू कैन चेक द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स सभी पॉइंट्स क्या है, सेम डिस्टेंस में है, तो सेम पोटेंशियल हो जाएंगे, सो यू कैन चेक फॉर द ऑप्शन, सो दिस इज आल्सो ए मॉडरेट टू इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अभी तक मतलब कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो बहुत खतरनाक सा हो और लाइक आपको डरावने वाला हो, हाँ थोड़ी चीज़ें हैं कि आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है, और उनका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। You should be in position to answer all questions up to here basically। next question, let's say next question number 11, तो ये तो देखो और भी आसान क्वेश्चन है जो इट्स बेस्ड ऑन YDSE इन वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे एक है और दो सोर्सेस हैं बेसिकली S1 S2, इनके बीच का पाथ डिफरेंस तुम्हें दे रखा है, लेट्स से डेल्टा x और d, तो अब ये पॉइंट है तुम्हारे पास P2, दिस इज पॉइंट P1, और यहाँ पे P2 पे क्या होगा, अगर D है इट्स मल्टीपल ऑफ लैम्डा बेसिकली, देन इट विल बी हैविंग मैक्सिमा, P1 पे मैक्सिमा होता ही है, बाकी जनरल पॉइंट पे आप पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस विल बी लाइक फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा बढ़ाने से पाथ डिफरेंस क्या बढ़ रहा है, या फिर मतलब डेल्टा एन
एंगुलर फ्रिंज विड्थ बेसिकली, तो डिपेंडिंग ऑन, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट कैन बी आल्सो आंसर्ड इजीली, सो इट्स आल्सो आई विल से इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेसिकली जो अपन वेब ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, देन वी डिस्कस दिस टाइप ऑफ मॉडल एक्चुअली, तो बहुत ही आसान सा है, अगर आपने नहीं पहले पढ़ा हुआ है then you may find it little bit confusing, little bit difficult, otherwise it's very easy, straightforward question. Next question number 12, that's based on EMI basically। तो यहाँ पे आपको एक बैटरी कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस और दो इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं, दोनों इंडक्टर्स से फिर करंट और बाकी उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए रिलेशन है L1 I1 किसी भी टाइम पे इक्वल टू L2 I2, वो टोटल करंट इन एट लॉन्ग टाइम विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू वी बाई आर, फिर इनको रीअरेंज करके I1 I2 निकालना है और फिर बाकी चीज़ें। सो आई वुड से दिस इज आल्सो रियली एन ईजी क्वेश्चन एक्चुअली। सो दैट्स अप टू क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सो लेट मी फर्स्ट इरेज द बोर्ड फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे बोल रखा है रिजिड रॉड ऑफ बार ए बी ऑफ लेंथ L स्लेट is slipping from its vertical position on a frictionless floor as shown in the figure at some instant of time, the angle made by the bar with the vertical is theta। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे एक रॉड इनिशियली इस पोजीशन में अभी स्लाइड कर रही है, थोड़ी देर बाद ये स्मूथ सरफेस है, दिस एंगल इज थीटा। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो उस टाइम पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री और बाकी चीज़ें इसमें पूछेगी। ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट फॉल मिड पॉइंट ऑफ द बॉल बार फॉल वर्टिकली व्हेन बार मेक एन एंगल, तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी बेसिकली कैलकुलेटेड इजीली, सो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे पूछा गया है यस ए व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील है ऐसा और एक स्टेप पर रखा हुआ है इस तरह से, एंड नाउ इट्स बीइंग पुल्ड। इसको अलग अलग तरह से ये आपको पॉइंट पे आंसर कर रहे हैं, पी एस, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर एंड दिस इज पॉइंट एक्स। तो अलग अलग पॉइंट पे जो तुम्हें कुछ ऑप्शन में दे रखा है कि पी पॉइंट पे टेंजेंशियली फोर्स लगाया जा रहा है, एस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली या फिर एक्स पॉइंट पे नॉर्मली, एंड इस तरह से चीज़ें हैं, तो वहाँ पे टॉर्क वगैरह और उन सब की क्या कंडीशन होगी। तो अगर ये लगाया जाता है तो थोड़े टाइम बाद ये रोटेट करके इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा। जस्ट राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टाउ एंड लुक फॉर इट वेदर इट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन आंसर इट क्वेश्चंस इजीली। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा ढंग से, और बेस्ड ऑन दैट राइट द एक्सप्रेशन एंड देन यू विल बी एबल टू कमेंट इट। सो इट्स ए मॉडरेट क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 15, इट्स बेस्ड ऑन RBD also, and next is a basically section 3 which is having 4 questions based on 2 passages by comprehensions. Each comprehension has 2 questions basically. तो 15 and 16 based on 1 comprehension। तो comprehension में यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक RC सर्किट है, RC सर्किट, and this is a switch and connected to 1 battery like this. Initially switch was open, this is R and this is C। तो एक स्टेप में तो क्या हो रहा है, इसको सीधा स्विच को ऑन कनेक्ट कर दिया जाता है RC और V वैल्यू टू इसकी बैटरी। तो उस टाइम पे इस पर कितना चार्ज स्टोर होता है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कितनी हीट डिसिपेट हो जाती है, और वो बेसिक सा प्रॉब्लम है बेसिकली स्टैंडर्ड, एंड दैट यू कैन कैलकुलेट। सो एक प्रोसेस ये है और उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट वगैरह डिसिपेशन और एनर्जी स्टोर्ड दैट कैन बी कैलकुलेटेड। रियली इट्स एन ईजी प्रॉब्लम एक्चुअली। जो इसी का पार्ट 2 है, दैट्स बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16। उसमें है कि इसी प्रोसेस को अभी क्या कर रहे हैं, इसमें बैटरी को कनेक्ट चेंज कर रहे हैं। एक बार V0/3 बैटरी, तो उसको कनेक्ट करके थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाता है, तो इसमें चार्ज कुछ आ जाएगा Q0/3। फिर इसके बाद इस बैटरी को 2V0/3 बना दिया जाता है, फिर उसको छोड़ देंगे तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, फिर 3V0। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जा रही है, और इस प्रोसेस में भी कितना हीट डिसिपेट हुआ, तो मतलब वही कि बैटरी ने कितना काम किया बेसिकली, और कितना एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, डिफरेंस ऑफ दैट विल बी द हीट स्टोर। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेसिकली। सो इट इज एन मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली 17 and 18, that's based on another passage and comprehension, and this is the basically brainstorming problem of this पेपर। तो यहाँ पर है आपको एक ट्वेल है, 1 ट्वेल ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 and 18।
एंड दिस इज द फिंगर एंड इट्स रोटेटिंग लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है बेसिकली, यहाँ आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए आपको। तो इसके लिए लाइक सम सॉल्यूशन वीडियोस आर अवेलेबल, आई हैव आल्सो शेयर्ड, सो जस्ट गो थ्रू दैट इन डिटेल स्टेप्स बेसिकली। इट्स बिकॉज पहली बात तो आरबीडी का प्रॉब्लम है और लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं, आई विल से कि अच्छा खासा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। सो फॉर दैट some detailed explanations are available, you just go through them solutions, it will help you a lot। मतलब अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, आपको देखना चाहिए। सो क्वेश्चन 17 इट्स बेसिकली टफ क्वेश्चन, वेरी these are only, and similarly question number 18 also a tough question basically, because understanding this and going through कि हाँ exactly क्या क्या कौन सी एंगुलर वेलोसिटी कैसे कनेक्ट करके आपको समझना होगा, for that you will need detailed solution of this। तो ये दोनों ही काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे, मतलब आपको एक मैं बोल सकता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स के लिए दिस वाज द क्वेश्चंस विच वाज सपोज टू बी लेफ्ट इन द एग्जाम, बेसिकली अटेम्प्ट करने के लिए नहीं थे। हाँ, ओनली फॉर द टॉपर्स, top 10% or even like 5% or 1-2% students, they were supposed to solve it actually। या फिर IIT का टॉपर है तो उनके लिए जो 100 या 1000 रैंक में आ रहे हैं, मतलब बेसिकली ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स। तो ये था आपका अबाउट पेपर 2 फॉर ईयर 2017। तो आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस कितने आसान पूछे जाते हैं। सो व्हाई यू आर वरिंग अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेट्स लीव देम एक्चुअली। योर टारगेट, इफ योर टारगेट इज टू यस get the rank under 100 and under 5, definitely you must be worrying about that part too। But when your target is to secure even good rank and in just cracking, really like it's not very difficult if you go with the things with proper strategy of identifying and selecting and solving only easy and moderate questions, you can easily do it। Just go through and try for more, work hard, and that's all like you can do, and wish you all the best, and that's all। Thank you very much everyone, take care।